students. Today we will discuss our next unit, that is unit number 6, general principle and processes of isolation of elements. So these particular units include all the process and principle that we used for extraction and isolation of elements. Okay. So very first thing, we know that metal is the most important, or metal play a very important role in our day to day life. Metals are used in building steels, iron, wires that carry currents, the bridges, tall towers, the vessels that are made up of stainless steel, ship's body, the batteries, vehicle engines, all are made up of metals. So how we can get these metals? So what is the process of getting these metals? Pure metal can be extracted from ore by some chemical reactions. There are few pure metals that are found in the universe as purest form that can be extracted from ores. So you must have think about what an ore. We will discuss about it. What is an ore? What is a mineral? So very first thing, what is a mineral and ore? Mineral is a word derived from the word mine. Okay, the naturally occurring substance in the form of which the metal occurs in earth crust are known as mineral. Means what? All the naturally substance which are occurring in atmosphere and which are occurring on the surface of earth, which is known as earth crust, are known as minerals. Every mineral is not extracted. Means what? Every mineral is not made for the extraction of metal, and the minerals from which metal can be economically and conveniently extracted is known as ore. So try to see the difference. A mineral is anything that found on the earth crust. Okay, and the mineral through which we use a method which is economically and conveniently for extraction of metal is known as ore. Thus all ores are minerals. Means what? All ores are extracted from minerals. Okay, so all ores are minerals, but all minerals are not ore. Impurities associated with ores are known as gangue. Gangue. Okay, so you can see here in this picture, mining is the process of extraction of elements from earth crust. Okay, mineral 1, mineral 2, mineral 3, mineral 4. Zinc can be extracted from mineral which is very most cost effective. Okay, mineral and ores. Minerals are basically which are found on earth crust, and ores through which metal can be extracted economically and conveniently. So all ores are minerals, but all minerals are not ore. Okay, because there is not a suitable methods for few minerals through which metal can be extracted. Okay, next is the extraction and isolation of elements और मेटल्स फ्रॉम द ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और उसे आइसोलेट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप करने पड़ेंगे? सबसे पहला जो स्टेप है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर. कंसंट्रेशन मीन्स भी प्यूरिफिकेशन. सेकंड है आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट कंसंट्रेटेड ओर. जो कंसंट्रेटेड ओर हमने करा है जिसका कंसंट्रेशन, उससे मेटल को आइसोलेट करना है. और थर्ड है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल. अब जो इंटायर प्रोसेस है टेक्नोलॉजिकल फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स इज नोन एज metallurgy. Means what? We use the method and techniques for isolation of metals from the ores is known as metallurgy. So metallurgy is a process of getting a metal from its ore. Okay, next is, you can see here ore metal, or you can get metal from the ores.
Now, occurrence of metal. This is important. How metal are occurring on the atmosphere of Earth. So, upper part of Earth crust होती है अभी. Earth crust is the source of many elements. बहुत सारे elements हैं Earth crust पे. ठीक है. Out of these elements, 70% जो elements है वो क्या है? Metal है. एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मेटल पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे और आयरन उससे दूसरे नंबर पे. एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट. अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा मेटल मिलता है अर्थ क्रस्ट पे, दैट इज एल्यूमिनियम. एंड आयरन कम्स सेकंड. द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट इज गिवन. ऑक्सीजन 49%, सिलिकॉन 26%, एल्यूमिनियम 7 to 5%, iron 4 to 2%, 4.2%, calcium 3.2%, sodium 2.4%, potassium 2.3%, magnesium 2.3%, and hydrogen as 1%. So this is particularly the percentage of different element found on the earth crust. Metal can occur in two forms in a nature. अब मेटल की अकरिंग कैसे होती है भाई? दो तरीके से मेटल अकर कर सकता है किसी भी एटमॉस्फेयर में या फिर अर्थ क्रस्ट में. पहला मेथड क्या है? नेटिव स्टेट. नेटिव मतलब उसकी नेचुरल स्टेट में, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं, सिंपल आपका जो मेटल है आप एक्सट्रैक्ट करोगे और को जो है आप उसे माइन करोगे एंड यू कैन गेट द मेटल बाय सिंपल प्रोसीजर, सिंपल प्योरिफिकेशन मेथड्स. कंबाइंड स्टेट में कैसे मिलता है भाई? कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है कि आपका जो मेटल है वो किसी न किसी दूसरे मेटल के साथ या फिर किसी और के साथ रिएक्ट करके या तो मेटल ऑक्साइड्स बनाए हुए हैं या फिर मेटल कार्बोनेट्स बनाए हुए हैं या फिर और सोल्ट्स बनाए हुए हैं. ठीक है, तो उसको आप बोलते हो कंबाइंड स्टेट. सो मेटल कैन अकर इन टू फॉर्म्स. वन इज नेटिव स्टेट, अनदर इज कंबाइंड स्टेट. वो डिपेंड करता है कि मेटल की रिएक्टिविटीज कितनी है. So next is a native state and combined state. Native state का मतलब है elements which has low chemical reactivity. जिन elements की reactivity बहुत कम है और जो noble metals है. noble metals कौन से होते हैं भाई? जो metals react नहीं करते. Okay. वो least इलेक्ट्रोपोजिटिव करेक्टर होता है और ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर से अटैक नहीं होते. सो दीज एलिमेंट्स आर अकरिंग इन द नेचर इन फ्री स्टेट और इन नेटिव स्टेट, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस. सो द एलिमेंट्स विच हैव लो रिएक्टिविटीज are found in the atmosphere or on the earth crust in native state, which are not attacked by oxygen, moisture and carbon dioxide. Combined state में क्या मिलता है भाई? Highly reactive metals elements such as fluorine, chlorine, sodium, potassium occurs in the nature in the form of their oxides, carbonate, sulfides and halides. ये मैंने आपको बताया था अभी. सोल्ट्स मिलते हैं भाई मेटल्स के जिस टाइम हाईली रिएक्टिव मेटल्स प्रेजेंट हो. ओके, हाइड्रोजन एक सिर्फ नॉन मेटल है जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है जिसकी. हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ओनली एंड दैट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज H2O, वाटर. अकरेंस भी हमने अभी बताया, अकरेंस ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट और नेटिव स्टेट. नाउ देयर आर सम मेटल्स. वन इज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिससे बहुत बारी क्वेश्चन पूछता है सिंगल मार्क्स से. बॉक्साइट किसकी ओर है? ओर्स ऑफ बॉक्साइट. Bauxite is the ore of which element? That is aluminium. और which metal? Kaolinite भी भाई किसकी ओर है? एल्यूमिनियम की. AlOxOH32X आपका फॉर्मूला होता है भी किसका? बॉक्साइट का. Al2OH4Si2O5. आयरन की भाई हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4,
siderite FeCO3, iron pyrites is FeS2, Fe2O3, Fe3O4, FeCO3 and FeS2. हेमेटाइट क्या होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, साइडेराइट क्या होता है FeCO3 आयरन कार्बोनेट, आयरन पायराइट क्या होता है FeS2. अब कॉपर भाई, कॉपर एज कॉपर पायराइट CuFeS2, मालाचीट CuCO3 CuOH2, क्यूपराइट Cu2O, क्यूपर ग्लांस दैट इज Cu2S, कॉपर सल्फाइड. अब जिंक की जिंक ब्लेंड और सल्फराइड बोलते हैं, दैट इज जिंक सल्फाइड. कैलेमाइन क्या होता है जिंक कार्बोनेट, क्या होता है कैलेमाइन भाई जिंक कार्बोनेट. और जिंकाइट क्या होता है, जिंसाइट क्या होता है आपका जिंक ऑक्साइड. सो दीज आर पर्टिकुलरली ओर्स ऑफ पर्टिकुलर मेटल. ठीक है भाई. नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट how the extraction and isolation of metal can be done. तो एक्सट्रैक्शन के लिए फॉलोइंग स्टेप्स हैं भाई. सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ और चाहिए, फिर हम उस और को कंसंट्रेट करेंगे. हमारे पास इम्प्योर मेटल मिलेगा, फिर उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे. ओके. नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सबसे पहला स्टेप. सो the first step is to remove the impurities from the ore. impurities निकाली जाती है भाई, जो किसी भी केमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल की और जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग किया जाता है. द फर्स्ट स्टेप और द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज टू रिमूवल ऑफ impurities which are only on the basis of physical properties, not on the basis of chemical process. Okay, we just see and we can handpick the impurities, or there are few other methods which has to be used for concentration of ore. So physical process कौन कौन सी इन्वॉल्व होते हैं अभी concentration of ores में? हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस और लीचिंग. इन सारी प्रोसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन और लीचिंग. हाइड्रोलिक वॉशिंग एज द नेम सजेस्ट वाटर से वॉश करते हैं भाई. मैग्नेटिक सेपरेशन मींस आप एक मैग्नेट से जो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है उन्हें अलग अलग करते हैं. फ्रोथ फ्लोटेशन ये भी उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के लिए यूज होता है जिनमें सल्फाइड प्रेजेंट होता है, तो उसमें फ्रोथ फॉर्मेशन कराते हैं बाय एडिंग एडिशन ऑफ डिटर्जेंट और एनी अदर सब्सटेंस. और लीचिंग इज द सेम प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ ओर. नाउ आइसोलेशन ऑफ द ओर फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर. अब भाई हमने मेटल को आइसोलेट करना है, किससे? जिस ओर को हमने कंसंट्रेट करा है. सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑफ गेटिंग इम्प्योर मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर. और ये केमिकल प्रोसेस होती है. इम्प्योर मेटल हमारे पास हमें मिलता है बाय एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर. इम्प्योर मेटल मतलब कैसे भी आपके पास आप लोगों ने क्या करा, जो अनवांटेड फिजिकल प्रोसेस से इम्प्योरिटीज जो हो सकती थी वो निकाल दी. अब आपने क्या करना है, केमिकल प्रोसेस से इम्प्योरिटीज को निकालना है. तो केमिकल प्रोसेस से इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर, देयर आर फ्यू प्रोसेस. वन इज कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड. ऑक्साइड का कन्वर्जन भी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, रिडक्शन टू फॉर्म मेटल. ओके. सेकंड जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोकेमिकल है. थर्ड जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है या फिर रेडॉक्स प्रोसेस है. सो पहले कैल्सिलेशन और रोस्टिंग प्रोसेस हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस का यूज करके हम मेटल को आइसोलेट कर सकते हैं. किससे? उसकी कंसंट्रेटेड ओर से. Next, when we done with concentration, we have to do the purification. So purification के लिए जो particular methods use होते हैं, सबसे पहले distillation, liquefaction, electrolysis, zone refining, vapor phase refining और chromatographic methods. Distillation is the process we used for distillation of water.
लिक्वेशन हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स. Okay. So today we are done with these things. Next we will discuss one by one what are the different processes of very first process of separation of impurities or the concentration of ores, and we will discuss about hydraulic washing, magnetic separation, froth flotation process and leaching in the next lecture. Okay.